Hello students, so here we are to start with the fourth chapter in physics, that is about the pressure in case of fluids, and a topic correlated to it, that is about the atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Here it is going to deal with all the different types of pressures that are going to be exerted, its effect, how do we increase the pressure, how do we decrease the pressure, and what are the factors on which the pressure depends. And there are lots of units and numerical parts. So all these things we will study in detail. So first we start with the A part, that is your A part contains the pressure in case of fluids. And how does it get transmitted, its transmission. Okay, so we are going to study over here first about the pressure in fluids. So to study the pressure in fluids, we require two things to be explained, because the pressure depends upon how much force is acting and how is the force acting, and also upon the area of the surface on which it is acting. In such cases, the force is called by a different terminology called as thrust. So what is actually thrust? Here, suppose if I take that this is your surface, okay, the pressure or the force can be applied in any direction. It can be applied cross incline, यहाँ पर angle बन रहा है theta, okay, it can be applied cross or it can be acted perpendicular, okay. So out of these three cases, two are inclined and one is perpendicular. Such type of perpendicular force is called as thrust. So if you go to define thrust definition, the thrust is actually the force. Thrust is actually the force which is acting normally is actually perpendicular. Normally means perpendicular to the surface. Okay, on a surface. So thrust is what? Thrust is a type of force which is acting perpendicular or normally on a surface. Here I have given you the diagrammatic explanation to it. Okay, so now suppose if I take one more thing, example wise, suppose if I take some surface on which I am keeping a body. The weight of this body is suppose 10 न्यूटन. ओके, अगर इसका वेट 10 न्यूटन है तो ये जो सरफेस है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, इसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट होगा, क्या वो 10 है तो इसको तोड़ देगा या फिर वो फ्लोट करेगा, मतलब ये क्या करने वाला है, हाउ मच फोर्स इज गोइंग टू बी एक्टेड. सो व्हेन द वेट इज 10 न्यूटन तो ये दिस सरफेस इज गोइंग टू बैलेंस इट. अब ये बैलेंस क्यों कर रहा है? वी स्टडीड इन द न्यूटन्स लॉ, इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब द फोर्सेज एक्टेड विल बी acting will be equal. इसका मतलब if the weight is 10 Newton, the force exerted will also be 10 Newton. Getting it? So इसका मतलब when the weight is 10 Newton of the body, the force exerted by the body on the surface will also be 10 Newton. इसका मतलब we can say the thing that thrust which is exerted by a body on a surface will equal to the weight of the body. समझ में आया? I have explained you over here. कोई भी एक surface है, the thrust exerted by the body, अगर ये body का जितना force act हो रहा है वो कितना होगा, ये force कितना होगा, it will be equal to the weight of the object. If the weight is 10 Newton, the force will also be 10 Newton. Getting it? So इसके लिए it was said that force and thrust is one and the same. Okay, now since the force already as studied in the previous chapter, it is a
it requires direction in which the force is applied, and therefore we say that force is a vector quantity. It is a vector quantity. तो याद रखना है अपने को vector quantity. So these are all the important points that I am highlighting and the definitions. Okay, so force is a vector quantity. Now if you go to see the units, there are different units in this. Okay, now as I said that force, the thrust is a type of force, so the unit of thrust will be same as that of force. What was the unit in SI system for force? It was Newton. तो इसका मतलब thrust का unit is also Newton. And in CGS system the unit for force was dyne. So here also it will be dyne. What was the relation between Newton and dyne? That I had already said. It is 1 Newton is equals to 10 raised to 5 dyne. Now ये अब मैंने derivation बताया हुआ है in the previous chapter where I was speaking about force. तो फिर भी अगर चाहिए वापस से तो I can tell you that 1 Newton is actually made up of 1 Newton. Force is what? Mass into acceleration. So force is mass into acceleration. Mass का unit was kg, यानी कि 1 kg into 1 meter per second square. But 1 kg is 1000 grams and 1 meter is 100 centimeters. Centimeters per second square. इसका मतलब 10 raised to how many zeros? 1, 2, 3, 4 and 5. So it becomes 10 raised to 5 dyne. So I have proved again that 1 Newton is 10 raised to 5 dynes. These were the normal units. But there are some other units called as gravitational units. So for that we explain it. The gravitational units. Gravitational units. So if gravitational units of thrust or the force. So in MKS or SI system the unit is kilogram force, and in CGS system it is gram force. Now how are they correlated? 1 kilogram force is equals to 9.8 Newton. Getting it? And 1 gram force is made up of 980 dynes. Getting? So this is all about thrust. So to study about the pressure we require two things, force and area. I am trying to explain you which type of force it is acting. So here the force is called as thrust, and the thrust means actually the force acting with perpendicularly normally on any surface. And the weight, the thrust exerted by the body, the thrust which is the force which is exerted by any body is always equal to the weight of the body, is equal to the weight of the body. Now this will be useful for the derivation purpose, that's why I have highlighted it. Okay, then force is a vector quantity. Why? Because it has direction. The force has to be applied in a certain direction. So force, that's why force is a vector quantity. And when I speak about the unit of thrust will remain the same as force. So in SI it is Newton, in CGS it is dyne. I have shown you the relation between Newton and dyne by derivation. In the gravitational units are kilogram force and gram force. The relation is 1 kilogram force is 9.8 Newton and 1 gram force is 980 dynes. Okay, this is about thrust. Then we proceed about pressure. The topic of pressure. What is pressure? The pressure is defined as, pressure is the thrust which is acting per unit area of the surface. The definition says the pressure is the thrust. Thrust means the force which is acting per unit area, depends upon area of the surface on which it is applied.
So here, if the pressure is dependent on thrust and the area, so when it depends upon the area, how does it affect? Now before that, let me derive a correlation, the correlation between these two. Here the effect of force, or the thrust is less on a large area, and the opposite of it is the effect of force or the thrust is more on a large area. Let me take an example. Suppose this is a sand bar, ये मिट्टी है, बराबर है, यहाँ पर भी मिट्टी है. टू केसेस. इफ यू स्टैंड ऑन द सरफेस, मिट्टी के ऊपर चौपाटी में खड़े हो सिर्फ, और यहाँ पर एक जन लेटा हुआ है. गेटिंग इट? द वेट ऑफ बोथ द पर्सन इज सेम. दोनों का वेट सेम है. ओके, द वेट ऑफ बोथ द पर्सन्स आर सेम, यानी सेम पर्सन इज in one case he is standing and the other case he is sleeping. So when the weight applied here on the surface, can you look at this area? ये सिर्फ इतने एरिया के ऊपर काम कर रहा है. So here what is the thing? The area is smaller, but in such case when you stand on such a sand, क्या होगा? Your feet get sink into the sand surface. Sink होते हैं, बराबर है. बट यहाँ पर when you are lying down, the sand does not sink much. Sink होगा little, मतलब negligible. इसका मतलब यहाँ पर when the area of the surface is more, तो when the area is less, the impact of the thrust is more, and here the area is larger and therefore the impact of the force is less. Getting it? That's why I've written the effect of the force is less. The effect of the force will be less. देख रहे हो सेकेंड केस के अंदर, the effect of the force is less on a large area because the person is sleeping down. इसका मतलब he is covering a larger area. इसका मतलब the force will be less. But when the effect of the force is more, force ज़्यादा कभी अप्लाई हो रहा है? when the area is smaller. Small. Getting it? It was a mistake. यहाँ पर small आना चाहिए. So the effect of force is less on a larger area and the effect of the force is more when the area is smaller. Okay? So these were the things, and the derivation, that is pressure as according to the definition. Pressure is the thrust acting per means upon, per unit area. It is denoted as capital P is equal to thrust is means the force upon the area. So from this case I am writing in the corner, from this case can you see numerator and numerator, यानी pressure जो होता है it is directly proportional to the force applied, and this is upon मतलब inversely. So the pressure will be inversely proportional to the area. इसको याद रखना, बाद में it will be applicable, बाद में वापस से रिमाइंडर दूंगा. Remember this. So force is directly proportional to pressure is directly proportional to the force, and pressure is inversely proportional to the area. And since here the direction for the pressure is not required because it acts in all direction, इसका मतलब pressure is a scalar quantity. Pressure is a scalar quantity. Okay, then how do we derive the unit? यहाँ पर ही यूनिट डिराइव करेंगे. यूनिट फॉर प्रेशर. नाउ डिराइव कैसे होगा? जस्ट नाउ वी सेड प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का यूनिट क्या था? इट वाज न्यूटन, बराबर है, इट वाज न्यूटन. और एरिया का क्या था? मीटर स्क्वायर.
न्यूटन हमेशा जब स्पेलिंग लिखते हैं तो स्मॉल से स्टार्ट होता है, इसका मतलब इट इज़ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी प्रेशर का यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो चीज़ है इट वॉज एक्चुअली प्रूव्ड बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट whose name was Blaise Pascal, and therefore we call this pressure का unit as 1 Pascal. इसका मतलब if this is Newton meter square per meter square and 1 Pascal, I can say that 1 Pascal, the short form is Pa. Pa. So 1 Pa, that is 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. Getting it? Just the derivation. And same way इसका CGS unit, इसका ये था MKS, तो उसका CGS unit will be same. तो CGS unit के अंदर it will be Newton per meter square था, तो it will become dyne per centimeter square. Getting it? अभी इसमें भी relation होगा that 1 dyne per centimeter square is actually equal to 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये 0.1 है, 0.1 मतलब 1/10 होता है। अगर इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1/10 को, तो ये क्या हो जाएगा, देखो वापस से लेट मी प्रूव इट। चलो, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1/, ये पॉइंट को शिफ्ट कर दिया तो इधर 10 आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई तो आई एम लेफ्ट विथ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। गेटिंग इट? तो यहाँ पर क्या क्या याद रखना है प्लीज़। प्रेशर का यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल, and the relation is 1 Pascal and 1 Newton meter square are same. This was in SI system, and then in CGS system the unit was dyne per centimeter square, and the relation ये वाला, ये डेसिमल का समझ गया रहेगा तो आई नीड रब इट दैट 1 dyne per centimeter square is 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको भी याद रखो, ये सब यूनिट्स का गेम है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। And 1 Newton per meter square is 10 raised to only 10 dyne per centimeter square. There are some smaller units also. अभी smaller units के लिए हम लोग अलग से समझेंगे। Okay? Okay. The smaller units, the other units or the smaller units are, the smaller units used are, one of them is called bar, the other one is called as millibar. Getting it? Bar and millibar. How are they correlated? 1 bar is equals to 10 raised to 5 Newton per meter square, and 1 millibar is equals to 10 raised to -3 bar, जिसको अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो it will become 10 raised to 2 Newton per meter square. Now where are this टाइप ऑफ थिंग्स यूज? ज्योग्राफी में हम लोग ने पढ़ा रहेगा, कंट्री मैप के अंदर याद होगा तो यहाँ पर एरियाज ऑफ इक्वल प्रेशर, एरियाज ऑफ इक्वल प्रेशर को पॉइंट करते हैं और बाद में वी ड्रॉ अ लाइन, सच लाइन्स आर कॉल्ड एज आइसो बार्स। याद आ रहा है? तो ये बार जो लिखा है ना आइसो बार, मतलब द प्रेशर हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड एट दिस पॉइंट्स, such lines are called as isobar lines. समझ में आ रहा है? ओके, ये ज्योग्राफी था, forget about it. बट बार एंड मिली बार कहाँ पर यूज होता है इसके लिए बता रहा हूँ मैं। इट इज कॉल्ड आइसोबार्स बट द यूनिट्स आर बार एंड मिली बार। देन फर्दर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिलेटेड ही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी। अच्छा, तो इंस्ट्रूमेंट विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट used to measure atmospheric pressure. The instrument is called as barometer. अब ये बैरोमीटर के अंदर होता क्या है? मर्क्यूरी।
बैरोमीटर के अंदर होता क्या है, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का लेवल एक बेस लेवल लेते हैं, नॉर्मल एट एनटीपी। डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीपी? एट एनटीपी, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, at normal atmosphere, at normal temperature and pressure. At normal temperature and pressure, the barometric height, जो barometric height होता है, it is 0.76 meters of mercury, या तो उसको कन्वर्ट करके यूज इट एज 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, और उसको कन्वर्ट करके 760 millimeters of mercury. So this is your normal at base level, that is at sea level. जो नॉर्मल सी लेवल है उसके ऊपर ये नॉर्मल प्रेशर है। अगर इससे कुछ ज़्यादा या कम हो गया, इसका मतलब देर आर प्रेशर चेंजेस। ये जो अभी साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, दैट आर मेजर्ड अकॉर्डिंग टू दिस। समझ में आ रहा है? कौन सा आया था लास्ट? अभी लास्ट साइक्लोन कौन सा आया था अभी? हाँ, इम्फाल। इम्फाल और कुछ तो आया था, क्या नाम था उसका? साइक्लोन निसर्ग। निसर्ग, हाँ। ऑल दोज वर डिपेंडेंट ऑन दिस प्रेशर चेंजेस। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स, ये जितना भी प्रेशर जो मेजर किया है इन विथ रिस्पेक्ट टू मीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, विथ रिस्पेक्ट टू मर्क्यूरी, ऑल दिस आर यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड देयरफॉर they are also called as 1 atmosphere. 1 atmosphere. So 1 atmosphere is also a unit for measuring pressure, and it is denoted by ATM, anytime money. So it is this much. Then the relation between the atmospheric pressure, that 1 ATM is equals to either 0.76 meters of mercury, या तो फिर ये भी ले सकता हूँ 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, और इट कैन बी 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, विच इन पास्कल बिकम्स, प्लीज रिमेंबर ये खास है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स. Getting it? Just have a better view. So 1 atmosphere. These are all the units. वापस एक बार go through कर लेते हैं. नहीं, उसके पहले जरा थोड़ा सा सुन लो. Sometimes we also use other units. We use torr. The other units are torr. अभी ये torr किसके ऊपर based है? Because of the scientist. चलो मैंने भी कुछ काम किया, मेरे नाम से कुछ बना दो. तो वो साइंटिस्ट का नाम था टॉरिसिल. ये जो होता है ना मर्क्यूरी बैरोमीटर जो होता है ना, उसके ऊपर बैरोमीटर यानी ये मर्क्यूरी यहाँ तक होता है, फ्लोट करता है, इसके अंदर मर्क्यूरी है, ये पूरा मर्क्यूरी है, और यहाँ पर एक वैक्यूम होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, मतलब देयर इज नथिंग, नो एयर, नथिंग. सो सच अ एम्प्टी स्पेस वाज कॉल्ड एज टॉर्सिलिन वैक्यूम. तो उसी के बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट टॉरिसिल. इसके लिए द यूनिट, वन ऑफ द यूनिट इज टॉर. द other units, अच्छा, how it is related? 1 torr is equals to 1 millimeter of mercury. ओके, इसका मतलब 1 atmospheric pressure यानी 1 atm कितना हो जाएगा? It will be 760 torr. ये सब सिर्फ लर्न करना है और ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसके लिए जस्ट गो थ्रू इट. चलो लेट अस वाइंड अप. वापस से स्मॉलर यूनिट्स आर बार, मिली बार एंड टॉर. ये स्मॉलर यूनिट्स है. और एक स्मॉलर यूनिट है एटीएम, दैट इज एटमॉस्फियर. तो देर आर 4 थिंग्स. एक तो बार, सेकेंड मिली बार, थर्ड थिंग वॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि ये है थर्ड यूनिट, और एक यूनिट है फोर्थ यूनिट, दैट इज योर टॉर. अब नाउ हाउ आर दे को रिलेटेड? 1 बार इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, and 1 millibar is 10⁻³ bar. तो 1 bar is this much. तो इसमें से -3 कर दो, it will become 10⁻² Newton per meter square. The instrument which is normally used to measure the atmospheric pressure is barometer. There are others also. 14th barometer है, बाद में altimeter है,
or different type of barometers to measure the atmospheric pressure. Now at NTP, ये सब केमिस्ट्री में आएगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो एट NTP जब टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट यानी नॉर्मल होता है, नॉर्मल जितना नॉर्मल हमला सी लेवल के ऊपर रखते हैं हम लोग, उसको कंसीडर करते हैं सी लेवल पे, दैट इज 0.76 मीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, या तो 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, या तो 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. सो ऑल दिस are constant values at sea level, and this constant value becomes 1 atmosphere, and therefore 1 atmosphere becomes a unit for measuring atmospheric pressure. It is denoted by ATM. Now how are they correlated? 1 ATM is actually how much? The same, 0.76 meters of mercury, या तो 76 centimeters of mercury, या तो 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. और उसका अगर कैलकुलेशन करोगे पास्कल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, तो इट इज गोइंग टू कम आउट टू बी 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स. फर्दर आई टोल्ड यू अबाउट द यूनिट कॉल्ड एज टॉर, विच इज नेम्ड ऑन द साइंटिस्ट टॉरिसिली. सो हियर 1 टॉर इज एक्चुअली 1 मिलीमीटर. यहाँ पर ये 0.76 है, हम लोग को हाई लेवल पे जाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग उसको. सो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, देयरफॉर 1 ATM is going to become 760 torr. समझ में आ रहा है? This was all about the smaller units which are applicable to find the atmospheric pressure. So the two uses of all this thing are, एक तो problems में use आने वाला है और एक objective part में use आने वाला है. What are the units? पूछेंगे वो लोग. Okay? We continue with the factors. The factors which actually affect the pressure. There are two factors on which it depends, and how do they affect, that we are going to study. The first factor is the area on which the thrust is applied, and secondly the magnitude I told you, it is a numerical value. कितना, 10 Newton, 5 Newton, कितना Newton, that is numerical value. The magnitude of the force या thrust. Okay, एक एक करके लेते हैं इसको. उसके पहले just keep in mind, हम लोग ने लिखा था pressure is equals to force upon area, and I told you accordingly that pressure is directly proportional to the force. Yes, and pressure is inversely proportional to the area. इसको याद रखना. अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत एप्लीकेबल होगा. यहाँ पर लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, ब्रेक का एग्जाम्पल. ये एक बार डायग्रामेटिकली पूछा गया था, सो दैट्स वाई थोड़ा गो थ्रू करते हैं हम लोग भी. जरा यहाँ पर इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मेंशन करते हैं. ये है ब्रेथ, ये है लेंथ और ये है हाइट. कितना है? 20 सेंटीमीटर. अब ये ब्रेक है और ये इसका बेस, कौन से बेस के ऊपर इट इज़ स्टैंडिंग? ये बेस के ऊपर. और वर्टिकल हाइट क्या है? 20. सो लेट दिस बी केस 1. ओके, और यही ब्रेक को अभी मैं सुला रहा हूँ, स्लीपिंग. यहाँ पर तो परपेंडिकुलर जो हाइट था वहाँ पर वो 20 सेंटीमीटर है. ये लेंथ अभी भी 10 सेंटीमीटर है, और इसका जो हाइट यानी कि जो ब्रेथ था पहले का, इट इज़ 5 सेंटीमीटर. लेट दिस बी केस 2. ओके, केस 1 एंड केस 2. यहाँ पर बोथ आर सेम ब्रेक्स, दोनों भी सेम ब्रेक है. अच्छा, इसका भी बेस कौन सा है, इसको कलर कर देता हूँ. ये बेस के ऊपर एक्ट कर रहा है, मतलब इतना एरिया इज एक्टिंग ऑन द सरफेस. So here, first of all, tell me what is the thrust over here. Thrust, चलो मेंशन हम लोग अज्यूम करते हैं, it is 4 किलोग्राम फोर्स. ओके, दिस मच फोर्स इज एक्टिंग. मतलब सिंस बोथ द बॉडीज आर सेम, थ्रस्ट यानी क्या? फोर्स यानी क्या? वेट. फोर्स, वेट. तो इस इधर भी थ्रस्ट इज 4 किलोग्राम फोर्स. ओके, नाउ व्हाट इज द बेस एरिया?
एरिया ऑफ द बेस, तो एरिया कितना है यहाँ पर, व्हाट एरिया इज एक्टिंग, इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, इट इज 10 इंटू 5 विच इज 50 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 50 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर व्हाट इज द एरिया, यहाँ पर एरिया, द बेस एरिया इज अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पर लेंथ हम लोग ले रहे हैं 20 और ब्रेथ को ले रहे हैं 10, तो ये क्या हो गया 200 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली अगर ये है किलोग्राम और ये एक्चुअली सेंटीमीटर्स में दिया था, सेंटीमीटर्स में, ओके इसको सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर लिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट यानी कि फोर्स अपॉन द एरिया, तो हियर द फोर्स इज 4 एंड एरिया इज 50। इसका कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिलेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो 50 जस्ट कैलकुलेशन बता देता हूँ, 4 और 50, 0.0 लिया, नहीं जा रहा है तो 0 लिया अभी और एक 0 आ गया, 5 8 जा 40 यानी कि 400, यानी कि 0.08 प्रेशर, प्रेशर का यूनिट अकॉर्डिंग टू दिस टू, इट इज किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके यहाँ पर प्रेशर आया, एक मिनट इसको नीचे लिख देता हूँ, तो द प्रेशर इज 0.08 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सेम वे यहाँ पर वी ट्राई टू फाइंड प्रेशर, इट इज अगेन फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पर द फोर्स एक्टिंग इज 4 एंड दिस इज 200, डिवाइड करेंगे 4 1 जा 50 जा, यानी कि वापस से इट विल बी, ये है 4 और ये है 200, 0 पॉइंट, तो एक 0 आया, वापस नहीं जा रहा है तो 0 और एक, अभी 2 जा 400 यानी 0.02, देयरफॉर प्रेशर एक्टिंग ओवर हियर इज 0.02। तो ये क्या है, प्रेशर 1 एंड प्रेशर 2, बराबर बराबर। तो नाउ इन केस 1 अभी कंपेयर द एरियाज, कंपेयर फर्स्ट द एरियाज, एरिया कहाँ पर है, ओके यहाँ पर एरिया इज, ये 50 है और ये 200 है, मतलब हियर द एरिया इज लेस और यहाँ पर द एरिया इज मोर, सो व्हेन द एरिया इज लेस, अभी यहाँ पर मुझे कंपैरिजन करके बताओ, दिस इज 0.08 एंड दिस इज 0.02 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नाउ विच इज मोर आउट ऑफ दिस, तो यहाँ पर प्रेशर एक्सर्टेड इज मोर, यहाँ पर द प्रेशर इज लेस, तो इसके ऊपर से व्हाट डू वी कंक्लूड, क्या पता चल रहा है, ओके एक चीज़ तो ये पता चल रही है, ये 0.08 है और ये 0.02 है, मतलब अगर मैं डिवाइड करूँ P1 अपॉन P2, तो P1 का वैल्यू 0.08 अपॉन 0.02, पॉइंट शिफ्ट यानी कि 8 अपॉन 2 यानी कि 4, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो दैट इज P1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स P2, और इन अदर वर्ड्स P2 हैज़ बिकम 1/4 ऑफ P1, यानी when the pressure when the area is increased, समझ में आ रहा है, when the area is increased, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर के ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है, इट इज़ बिकमिंग 1/4 ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर, समझ रहा है। कैलकुलेशन वाइज थ्रस्ट मैंने 4 लिया है, एरिया भी इसका लिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मुझे मिला 50, यहाँ पर मैंने 4 सेम ब्रिक है इसके लिए 4 लिया, लेंथ और ब्रेथ बेस का अभी 10 20 एंड 10 है, तो आई गॉट द आंसर एज 200। सो व्हेन आई कंपेयर द एरियाज, यहाँ दिस एरिया इज लेस एंड दिस एरिया इज मोर, and when I calculate by the formula pressure is force upon area, I get 0.08 and here I get 0.02। ये इतना काम का नहीं है, जस्ट एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। ओके सो here इससे पता क्या चलता है, when the area is less, the area on which the thrust is applied, the area on which the thrust is applied, when the area is less, you can exert a greater pressure, and when the area is greater, the pressure effect will be less। समझ में आ रहा है,
ये समझ में आया? सो दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैव कवर्ड. तो इससे पता क्या चलता है, एक मिनट, स्पेस स्पेस, ओके, यहीं पर ले लेते हैं स्पेस. पता क्या चलता है, दैट लार्जर the area on which a given thrust acts, lesser is the pressure exerted by it. समझा? Larger is the area, larger is the area, larger is the area, larger the area on which a given thrust, given, दोनों में given है, 4 constant है, but if the area is larger then lesser pressure, less is the pressure is less. समझा? Experimentally when 2 bricks are taken, we are just looking at the area of the base. एक का एरिया कम है, एक का एरिया ज़्यादा है. अगर एरिया कम होगा तो उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा होगा. यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो उसका प्रेशर कम होगा. गॉट दिस? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द एरिया ऑन विच द थ्रस्ट इज अप्लाइड, हाउ दे आर कोरिलेटेड. तो सिर्फ इतना याद रखो, व्हेन द एरिया इज लेस द प्रेशर इफेक्ट इज मोर, व्हेन एरिया इज मोर द प्रेशर इज लेस. इसीलिए तो मैंने लिखा था यहाँ पर, देखो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एरिया डिक्रीज हुआ. उल्टा बोलता हूँ, इफ एरिया इज इंक्रीज प्रेशर इज डिक्रीज, इफ एरिया इज इंक्रीज तो प्रेशर इज डिक्रीज, एंड व्हेन एरिया इज डिक्रीज द प्रेशर इंक्रीजेज. मैं वही का वही बोल रहा हूँ वापस, व्हेन एरिया इज डिक्रीज तो प्रेशर इज इंक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा. And when the area is increased, so pressure will decrease. So this is your first case. तो first point हम लोग ने explain कर लिया with the example और एक problem लेके. Okay, the second case study करते हैं. So now we go for the second case which affects the factors which affects the pressure. The second point was about the magnitude of thrust, how much thrust is acting on a body. For example, in the previous example I had taken a single slab, or a brick जिसके अंदर, let me explain it diagrammatically again. Here I am taking this as the longest side as the length, breadth as a 10 centimeter, and the height part as 5 centimeter. Okay, in this case, suppose if the thrust acting is 4 kilogram force, okay, and the area of the base, here your brick is lying on this surface, that is your base, so we consider the length as 20 and breadth as 10. So to find the area of the base, it is length into breadth, which gives me 20 into 10, which is 200. Since it is in centimeter, it is centimeter square. So what would be the pressure acting over here? Pressure is the thrust acting upon the area. What is the thrust? Thrust is 4 kilogram force upon 200. The division gives me 4 upon 200. In the previous part we had calculated, it came out to be 0.02 kilogram force. Okay, this is one part of it. Okay, now instead of 2 bricks, if I take 2 bricks placed one above the other, so उसमें क्या होगा, here so again here it is 20 centimeter, breadth part is 10 centimeter, and this much height is 5 centimeter, but there are 2 bricks, that is
1 and 2. Two bricks are placed one above the other. So now again the thrust. What would be the thrust acting over here? The force acting, I had assumed as 4 kilogram force. So 4 kilogram force, but there are two blocks. There are two bricks placed one above the other. So the total becomes 4 plus 4 kilogram force. That is your total of 8 kilogram forces acting on the base surface. So this is your base surface. And if this is your base, what would be the area of this base? Again, it would be same. That is length into breadth, which gives you 20 into 10, comes out to be 200 centimeter square. Now in this case, if I try to find the pressure, which is thrust upon area, it comes out to be 8 upon 200. Calculation part, calculation करेंगे इसका, it will be 0.04 kilogram. Here the unit is not kilogram force, it is kilogram force per centimeter square. ओके यहाँ पर भी आएगा किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कैन यू सी व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर? इट इज 0.02 एंड 0.04. ये क्या हो गया? इट हैज बिकम डबल्ड. इट हैज बिकम डबल्ड. और यहाँ पर द फोर्स जो थ्रस्ट लिया था वो भी क्या था? 4, और यहाँ पर टोटल 8 है, तो ये भी डबल लिया हुआ है. So what has happened is when the thrust is doubled, the magnitude of the thrust, magnitude मतलब value, value पहले 4 था और अभी 8 लिया है. इसका मतलब the magnitude of thrust is increased by 2 times, यानी उसको हम लोग ने डबल कर दिया. The force acting is doubled, therefore the pressure also becomes doubled. समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? The force is increased, therefore pressure has also increased. समझ में आ रहा है? So this is the new criteria or the second factor which is affecting the प्रेशर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट. अगर थ्रस्ट ज्यादा होगा तो फोर्स भी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा. तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट और राइट इट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट? दैट इज द लार्जर द थ्रस्ट acting on a given area, what would happen to the pressure? Greater is the pressure exerted on it. Getting it? So from the two examples, previously I took example where the brick was standing and the other case was sleeping. So there it became 1/4. मतलब that was related to change in the area, and here it is based on the magnitude of thrust, यानी the magnitude the force applied has increased. force को अगर डबल कर दिया तो प्रेशर भी डबल हो जाता है. So this was about the factors affecting the pressure. एक बार दोनों भी चीज पुट अप कर लेता हूं मैं. ये अपना सेकेंड पॉइंट है जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड के ऊपर बेस्ड था. सेकेंड पॉइंट मैं लिख देता हूं यहाँ पर. इट इज द सेकेंड पॉइंट विच वॉज डिस्क्राइबिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, the magnitude of thrust. और जो फर्स्ट पॉइंट था it was about the area on which thrust is applied. तो उसमें क्या स्टेटमेंट मिला था अपने को? The statement was larger is the area on which a given thrust acts. What happens to the pressure? Lesser is the pressure exerted by it. Getting it? So two factors we have described. I have taken two different examples and I have proved the two statements. Larger the area, lesser will be the pressure. Just statement को easy करने के लिए larger the area, pressure becomes less. यहाँ पर क्या हम लोग ने prove किया? Force is larger, the pressure is also larger. Getting it? So ये था अपना factors affecting the pressure. अभी we'll see about how can we increase the pressure or decrease the pressure. So first we go for ways of increasing the pressure.
ways of increasing pressure. Now how can you increase the pressure? There is one thing. To increase the pressure, we have to do it by reducing the area of surface on which it is acting. मतलब अगर एरिया को आप अगर कम कर दोगे, अगर एरिया को आप कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा, और जब प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है तो आपको ज़्यादा एफर्ट यानी कि ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा. सो विल स्टडी दिस विथ रिस्पेक्ट टू सम एग्जाम्पल्स जो कि गिव रीजन की तरह भी पूछा जा सकता है. सो द फर्स्ट गिव रीजन, इट कैन बी द एंड्स ऑफ नेल, और पिन भी ले सकते हैं. पिन्स आर मेड पॉइंटेड. आपको तो पता होगा ये नेल जो होता है, एक एंड जो होता है वो ब्लंट होता है और जो दूसरा एंड होता है वो शार्पली पॉइंटेड होता है. तो दिस इज योर ब्लंट एंड एंड दिस इज योर पॉइंटेड एंड. तो वेन एवर इट इज टू बी फिक्स्ड इन टू द वॉल, हम लोग ये पॉइंट के ऊपर ब्रिक वॉल के ऊपर पेनिट्रेट करेंगे और यहाँ पर हम लोग हैमरिंग करेंगे. तो जब यहाँ का एरिया देखो और यहाँ का एरिया देखो, लुक एट द ब्लंट एंड, हियर द एरिया इज मोर, यहाँ पर एरिया इज लेस. सो ऑटोमेटिकली व्हेन वी आर ट्राइंग टू हैमर दिस इनटू द वॉल, सिंस द एरिया इज लेस, रिड्यूसिंग द एरिया, यहाँ पर एरिया कम है तो फिर वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो ईजिली इट कैन पेनेट्रेट इनटू द वॉल. गेटिंग द गिव रीजन. इसी को मैं स्टेटमेंट में लिख के बता रहा हूँ. सो द एंड्स ऑफ द नेल और अ पिन आर मेड पॉइंटेड so that what happens, first of all, large pressure is exerted. Why? Because of the pointed end. बराबर. और because of its pointed end, since the pressure is larger, क्या होगा, they can be driven or easily can be put or penetrated into the wall with less effort. यानी फोर्स जो है वो अपने को कम अप्लाई करना पड़ेगा. Getting this give reason that the ends of the nails or pins are pointed. क्यों they are pointed? So that the pressure becomes larger. क्योंकि इट इज द वे फॉर इंक्रीजिंग द प्रेशर. जैसे ही प्रेशर कम हो जाएगा तो द पॉइंटेड एंड विल गेट पेनेट्रेटेड, कैन बी ड्राइवन इनटू द वॉल बट विथ लेस फोर्स. समझ में आया? ये फर्स्ट गिव रीजन था. उसी में ही दूसरा गिव रीजन है जो कि एग्जाम्पल की तरह काम करेगा कि जो भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, कटिंग इंस्ट्रूमेंट, द कटिंग टूल्स जो भी होता है, हैव इधर या तो वो शार्प, जैसे कि नाइफ होता है, एक साइड पे शार्प होता है, नाइफ जो होता है वो एक साइड पे यहाँ पर शार्प होगा और एक साइड पे ब्लंट होगा. तो वापस से मैं बता देता हूँ, ब्लंट यानी कि एरिया ज़्यादा है और ये शार्प मतलब एरिया कम है. तो यहाँ पर एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर, एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, लेकिन यहाँ पर जब एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा. मतलब यहाँ से व्हेन यू ट्राई टू कट एनीथिंग द प्रेशर अप्लाइड विल बी लेस, और जब द प्रेशर अप्लाइड विल बी मोर, तो easily the things can be cut out. The cutting tools have sharp edges, sharp या फिर pointed, कोई भी pointed instrument होगा तो वो चीज़ हमेशा उसका edges जो होता है यानी कि उसका जो sides जो होता है they are always sharp. क्यों? उसका रीज़न क्या हो सकता है? बिकॉज जब ऐसा करते हैं हम लोग, इवन अ स्मॉल फोर्स, थोड़ा सा भी अगर फोर्स या थोड़ा सा भी अगर थ्रस्ट अप्लाई करोगे, दैट कैन कॉज अ ग्रेटर
प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा। कहाँ से प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा? एट द साइड्स, यानी कि एजेस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। एंड देयरफॉर जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, कटिंग, सो कटिंग आउट और pointed instrument can be used easily. Cutting can be done with less effort. समझ में आ रहा है? सो वेज टू इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज, वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, प्रेशर इंक्रीज कब होगा? जब एरिया को हम लोग कम करेंगे। तो इसके लिए रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच इट इज एक्टिंग, किस तरह से? जैसे कि एग्जाम्पल इज द एंड्स ऑफ द नेल का जो एंड होता है एक साइड पे ब्लंट होता है और एक साइड पे पॉइंटेड होता है। तो प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा होगा? जहाँ पर एरिया कम होगा, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसके लिए लिखा है जो ends of the nail are pointed so that large pressure is exerted through the pointed end, यहाँ पर pressure increase हो जाएगा and therefore it becomes they can be easily driven or it can be hammered into the wall with less effort, यानी कि बहुत कम फोर्स से भी वो easily penetrate हो जाएगा। Same way the cutting tools have either sharp or pointed edges, जो साइड होता है जिससे हम लोग, जिस साइड से हम लोग कट करने वाले हैं वो हमेशा शार्प होता है या फिर पॉइंटेड होता है, ताकि क्या होगा? एरिया उसका कम हो गया। एरिया कम हो गया मतलब प्रेशर इंक्रीज हो गया। इसका मतलब आपको फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा? बहुत कम। इवन अ स्मॉल थ्रस्ट यानी कि फोर्स कैन मे कॉज अ ग्रेटर प्रेशर एट द एजेस। सो इस साइड पे बहुत ही कम प्रेशर, बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिससे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एंड व्हेन द प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, कटिंग कैन बी डन विथ लेस एफर्ट। समझ में आ रहा है? तो दिस आर ऑल द वेज ऑफ इंक्रीजिंग द pressure. Now the second part for it is that previously was ways to increase the pressure. Here it is ways of decreasing the pressure. Decrease करना है अपने को प्रेशर को। Now everyday life में there are certain examples जहाँ पर हम लोग को प्रेशर बहुत कम चाहिए। So फिर in this case हम लोग क्या करेंगे? ऑपोजिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एरिया को, वहाँ पर एरिया को डिक्रीज किया था, यहाँ पर एरिया को इंक्रीज करेंगे। द प्रेशर ऑन द सरफेस कैन बी डिक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द, बाय डिक्रीज करना है तो ये इंक्रीज करना पड़ेगा बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सरफेस। यानी अगर एरिया इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमारे लिए यूजफुल है। कैसे यूजफुल है? फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग रेलवे ट्रैक्स देखते हैं, ट्रैक्स, अभी ये ट्रैक है सपोज, रेलवे ट्रैक, ये रेलवे के रेल ट्रैक्स है, इसके ऊपर ट्रेन चलने वाला है, बराबर है? ट्रैक्स के ऊपर से ट्रेन चलने वाला है। तो ये एरिया सिर्फ इतना ही है, तो ट्रेन जब इसके ऊपर चलेगा तो दिस मच, ये एरिया बहुत ही कम है, तो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा और देयर आर चांसेस दैट दिस रेल ट्रैक, जो आयन का रेल ट्रैक होता है, वो डीप अंदर चला जाएगा एंड देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, बराबर है? लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एरिया को इंक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे? ये जो भी ट्रैक्स है उसके नीचे हम लोग इस तरह का एक वुडन बोर्ड रखते हैं, या पता होगा, इस टाइप का वुडन बोर्ड्स रखते हैं। तो ये जो वुडन बोर्ड्स हम लोग ने रखा, इससे क्या हो गया? एरिया इंक्रीज हो गया। तो प्रेशर, जो ट्रेन का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। अगर ट्रेन का प्रेशर कम हो जाएगा तो स्मूथली द ट्रेन कैन रन। समझ में आ रहा है? सो उसको हम लोग गिव रीजन की तरह कैसे पुट अप करेंगे? गिव रीजन होगा दैट वाइड वुडन स्लीपर्स, यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स है ना, ये जो ये जो प्लैंक्स है ना, प्लैंक्स रखा हुआ है ट्रैक के नीचे, उसको हम लोग बोलते हैं स्लीपर्स आर प्लेस्ड बिलो द रेलवे ट्रैक्स, बिलो द रेलवे ट्रैक्स। क्यों करते हैं हम लोग इस तरह रेलवे ट्रैक्स के नीचे? सो दैट
so that the pressure which is exerted by the iron rails on the ground becomes लेस। समझ में आया? जब खाली रेल होगा तो उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। ट्रैक्स टूट भी सकता है, ट्रैक्स डीप भी जा सकता है। लेकिन जब प्लैंक्स यानी ये स्लीपर्स जब हम लोग प्लेस करते हैं तो उससे क्या होता है, द प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आयरन रेल्स, ये जो आयरन रेल है उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा ऑन द ग्राउंड बिकम्स लेस। और अगर प्रेशर कम होगा तो ट्रेन कैन मूव स्मूथली। समझ में आया? दैट वॉज फर्स्ट गिव रीजन। सेकेंड गिव रीजन अपना ऐसा होगा कि कोई भी बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग उसका फाउंडेशन, द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग आर मेड wider than the walls। कैसे? अगर ये मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, अगर तो ये बिल्डिंग, ये जमीन है, लेकिन ये जमीन के ऊपर खड़ा है, लेकिन उसका बेस जो है वो, उसका जो बेस है सिर्फ अगर इतना रखूंगा मैं, जितना बिल्डिंग है उतना ही अगर बेस बनाऊंगा तो यहाँ पर एरिया इज लेस। बराबर है? अगर ये एरिया कम है तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा और बिल्डिंग का चांसेस है कि वो कोलैप्स हो सकता है, गिर सकता है। बट अगर इसके जगह पर अगर मैं इसका जो बेस है उसको मैं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़्यादा एरिया कवर करके उसको स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, ये उसका बेस बना दिया मैंने, ये बेस, तो उसका एरिया मैंने इंक्रीज कर दिया, तो ये जो बिल्डिंग का प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ग्राउंड के ऊपर। तो इसका मतलब जब उसका फाउंडेशन, ये जो बेस है ना उसको फाउंडेशन बोलते हैं। सो व्हेन आई इंक्रीज द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग देन द वॉल्स, ये जो वॉल्स है, वॉल्स से ये जो जितना वॉल्स है इतना एरिया के ऊपर उससे ज़्यादा बड़ा फाउंडेशन है अपना, तो जिससे क्या होने वाला है, एरिया इंक्रीज हो जाएगा फाउंडेशन का, एंड देयरफॉर द प्रेशर ऑफ द बिल्डिंग विल बिकम लेस, ताकि वो कोलैप्स ना हो सके, इट कैन बी सपोर्टेड स्ट्रांगली। सो दैट यहाँ पर क्या होने वाला है, द प्रेशर, वापस से वो ही होगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बिल्डिंग on the ground becomes less। समझा? रीजन दोनों का सेम ही था। यहाँ पर फाउंडेशन को इंक्रीज किया, फाउंडेशन को बड़ा कर दिया, मतलब एरिया को इंक्रीज कर दिया, ताकि प्रेशर, ये जो बिल्डिंग है उसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो जमीन के ऊपर कम प्रेशर गिरेगा। जमीन के ऊपर द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बिल्डिंग विल बिकम लेस। समझ में आया? दैट्स वाई द बिल्डिंग रिमेन्स स्टेबल फॉर अ लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम। So that is all about the small aspect of thrust, the pressure, the factors affecting the pressure, और उसका some give reasons कि how do we increase or decrease the pressure on the ground surface। अभी proceed करेंगे तो that is all about liquid pressure। मैंने actual chapter is going to start from now, okay।